or any trigonometric function, then we have inbuilt function. And how this function is invoked? We invoke this function with the help of module. For example, if you want to find out square root of a number, then we simply invoke math.sqrt and number is passed as an argument. Such function which are defined in a module for specific task, such function are known as मॉड्यूल फंक्शन। ये दो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। जो हमारा इंटरेस्ट है, बेसिकली वी आर कंसंट्रेटिंग टुडे ऑन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन व्हाई वी आर डिफाइन अ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नीड ऑफ अ फंक्शन, राइट। फर्स्ट, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क we have inbuilt function, we have to define a particular task, we write our code to, when this code execute, it will perform a certain task. For example, if I am converting Celsius temperature to Fahrenheit temperature, then we can write our own code to perform this task। ठीक है, तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करें। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, so a keyword def is used for define a user defined function. So first thing is I am simply writing down def, right? Def stands for define, def stands for define a function। ठीक है, तो def हमने लिख दिया, हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। मान लीजिए हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट square of a number, square of a number, right? This is my function, and argument, the thing which is passed in this function in this bracket is called parameters। ठीक है, इसके अंदर जो भी हम लोग पास करेंगे ये फंक्शन का आर्गुमेंट होगा, एंड दिस वन इज फंक्शन नेम। Important point to be remember while defining a name is name cannot start with a digit and name cannot contain special characters। ठीक है, अंडरस्कोर इज अलाउड। तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो टर्म एंड कंडीशन है, एग्जैक्टली वही टर्म एंड कंडीशन इफ यू वांट टू define a function, same condition also you must have to impose on function। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया हुआ है, दिस फंक्शन हैज नो आर्गुमेंट, तो यहाँ पर पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। अभी हम लोग सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पर पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉलोड बाय कोलन, राइट, दिस इज सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमने कोलन बनाया हुआ है, दिस वन। अब यहाँ से आपको इंडेंटेशन मिल गया। फर्स्ट आई एम राइटिंग दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, 3 बार हमने लिखा हुआ है दिस फंक्शन is defined for finding square of a given number, So what I am doing, I am writing down objective of this function। ठीक है, ये जो फंक्शन हम यूजर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हमने लिख दिया है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो आई हैव डिफाइंड दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग 3 बार, इट स्टार्ट्स विद 3 कोट्स एंड आल्सो टर्मिनेटेड बाय 3 कोट्स। अगर आप चाहें तो सिंगल कोट 3 बार यूज कर लेंगे तो वो भी वैलिड है। ठीक है, बाद में हम लोग उसको करके दिखा देंगे। यहाँ पर हमने कर दिया x, व्हाट इज x? x is a variable and I am taking input is a function and enter value of x, right? x में जो वैल्यू आ रही है that is stored in x। so x is by default naturally if you are finding out square of a square, it must be argument must be integer or float in nature। so
by default input function take input as an integer. So what I am doing, I am forcefully converting this string to a integer number or a float number. ठीक है, तो जो इनपुट फंक्शन से स्ट्रिंग में डिफॉल्ट आ रहा है इसको हमने फोर्सफुली कन्वर्ट करके इंटीजर बना दिया. सो व्हाट इज x? X is a variable which is storing input which you passed from the keyboard, right? And what I am doing, I am writing y is equal to x. X is a variable and x is multiplied with x. So I am printing output को हमने लिख दिया square and I am writing here as a this. ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन का ये देखिए, ये all the statements are having equal indentation, means these statements are part of this function. स्क्वायर फंक्शन के ये सारे स्टेटमेंट्स पार्ट हैं. हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं कि पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले डेफ कीवर्ड आना चाहिए. व्हाट इज डेफ? डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. ठीक है, तो डेफ देन फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस हैज ब्लैंक आर्गुमेंट, मींस फंक्शन इज नो आर्गुमेंट. ठीक है, फॉलोड बाय कोलन, और कोलन के बाद ऑल स्टेटमेंट हैविंग इक्वल इंडेंटेशन आर बॉडी ऑफ दिस फंक्शन. तो आप देख पा रहे हैं ये जो सारे फंक्शन हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल स्टेटमेंट्स हैव इक्वल इंडेंटेशन, मींस दिस इज बॉडी ऑफ स्क्वायर फंक्शन. ठीक है, तो यहां से फंक्शन को डिफाइन हो गया. अब हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कॉल करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक हैश लगा दिया, मींस वी आर सिंपली प्रिंटिंग अ कमेंट. नाउ वी आर ट्राइंग टू इन्वोक या एग्जीक्यूट आर कॉलिंग अ फंक्शन. ठीक है, सब एक ही चीजें हैं, सबका नाम जो है नाम अलग अलग है, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल फंक्शन आर सेम. इन्वोक, एग्जीक्यूट एंड कॉलिंग आर द सेम थिंग. ठीक है, तो अभी हमने फंक्शन को डिफाइन किया है लेकिन फंक्शन कॉल नहीं हुआ. फंक्शन कैसे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्क्वायर फंक्शन. ठीक है, स्क्वायर फंक्शन, this statement is calling square function. So your first statement which is going to execute is square function. तो जब सबसे पहले ये function call होगा, then your control will search out where this function is defined. So from this step your control will enter inside this function, and this task which is defined inside this square function will invoke. And first of all, how this function will invoke, we will first define is how can we invoke this function. ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर को कॉल किया. अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं. जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए बता रहा है इनवैलिड सीक्वेंस, इनवैलिड एरर आ रहा है. इनवैलिड एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको कॉमा लगाना चाहिए था. होपफुली कोई एरर नहीं है. हमने एग्जीक्यूट किया. What I am passing 5 as argument, and if I execute it, I can see that square of x 5 is equal to 25. ठीक है, समझ पे आ रहे हैं? अभी सारे लोग अच्छा जुड़े तो हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको बोलिए जल्दी बीच में. हाँ सर रिपीट कर दीजिए एक बार. हाँ, हमने ये कहा कि सबसे पहले what is my objective? My objective is we are define a function with distinct objective, that when this function square will execute, the objective of this function that it will calculate square of a number, and number which is passed as an argument. So every function has distinct डेफिनेशन. उसका प्रोटोटाइप में सबसे पहले डेफ एक कीवर्ड आना चाहिए, उसके बाद फंक्शन नेम, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स, फॉलोड बाय कोलन. यहाँ पर देखिए हमने तीन बार जो है कोट लगाया हुआ है. what this emphasize what is objective and why this function square is created. तो यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है.
ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. दिस इज फॉर यूजर टू मेक योर प्रोग्राम यूजर इंटरेक्टिव. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट. एंड x इज टेकन एज इनपुट. तो जो वैल्यू x में आ रही है उसको हम लोग इंटीजर बना रहे हैं, क्योंकि जब स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर हमेशा किसका होना चाहिए? इंटीजर नंबर का होना चाहिए. स्ट्रिंग का स्क्वायर आप नहीं कर सकते. अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 इट विल रेप्लिकेट. ठीक है. अब यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया. अब फंक्शन को इन्वोक करना है. इन्वोक करने के लिए फंक्शन को हमने कॉल किया. So this is my elementary function. This is my first function and it has no input argument, no parameters. ठीक है. अब हम लोग इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. एक चीज यहाँ पर हम लोग और कर सकते हैं. यहाँ पर हमने डबल कोट लगाया हुआ है. हमने कहा है वी कैन यूज डबल कोट एंड ट्रिपल कोट इंटरचेंजेबली. ठीक है ना. हमने तो यहाँ पर डबल कोट की जगह पर एक चीज हम लोग और कर सकते थे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थी. यहाँ पर देखिए 1 2 3 टाइम्स हमने लिखा और 3 टाइम्स के बाद जो है ये स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको हमने यहाँ पर डाल. हाँ जी, हाँ बोलिए. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमने यहाँ पर डाल दिया हुआ है कि जो डबल कोट था उसको हमने सिंगल कोट से रिप्लेस कर दिया. बट 3 बार हमने लिखा हुआ है. सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इज मेकिंग यूजर प्रोग्राम इन यूजर. ठीक है. तो यहाँ पर हमने 6 इनपुट पास किया एंड आप देख रहे हैं कि जब स्क्वायर फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 36. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर जो हम लोग पास करते हैं, यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है, जब हम लोग कॉल कर रहे हैं दिस पैरेंथेसिस इज ब्लैंक. means we are not passing any argument, we are not passing anything as argument, but we can pass function with argument. For example, if I write down a. ठीक है. what is a is equal to integer input. ठीक है. और यहाँ पर हमने लिख दिया इंटर नंबर. ठीक है. जिस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको आप यहाँ पर लिखिए a, और यहाँ पर हम लोग a को एज आर्गुमेंट पास कर दे रहे हैं. सो when you are invoking a function, right, variable passed inside this function, inside this parenthesis, everything which is passed inside this function is called argument. So this function has argument a. ठीक है. जो a है, a एक आर्गुमेंट है, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को पास कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है एंड फंक्शन इज डिफाइंड समवेयर. सो व्हाट आई एम डूइंग, जब यहाँ से जंप हो करके कंट्रोल यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं दिस इज माई b. ठीक है. एंड व्हाट इज माई b? I am writing down y is equal to b into b. ठीक है. b into b and square of this function is this one. ठीक है. यहाँ पर देखिए पहला जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था. अब हम लोग जो फंक्शन को थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, वी आर पासिंग a as argument. Now we are invoking this function. ठीक है. तो जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इज दिस, राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इज दिस. नाउ आई एम पासिंग लेट्स से 10 इज. समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया. अरे पहले दिन बता रहे हैं, कैसे समझ में आ जाएगा? थोड़ा धैर्य से सुनो. तो अभी पहली बार बता रहे हैं, पहला प्रोग्राम लिखे हैं इस पे. ठीक है. धैर्य से सुनो. अभी मतलब जो है हमने ऐसा नहीं है कि पहली एक को बार बताया है, पहली बार हम लोग फंक्शन को चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां से देखिए इस फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं. वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. इसको हमने एग्जीक्यूट किया.
यहाँ पर देखिए जो है कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग 5 पास करते हैं तो अभी ये हम लोग यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पर अगले जो है इसमें पास कर दे रहे हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया। सो व्हाट इज हैपनिंग, y इज इक्वल टू b इंटू बी। ए यहाँ से हमने पास किया, स्क्वायर फंक्शन यहाँ पर आया 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। हाँ हाँ, सब चीज सही लग रहा है। इसको हम लोग एक बार फिर से जो है ओपन कर लेते हैं, सो कॉपी कर ले रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई एम सिंपली कॉपिंग दिस वन, ठीक है। और इसको अभी हम लोग यहाँ से बंद कर दे रहे हैं। एक यहाँ से हम लोग नया एडिटर ओपन कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बार बार जो है हमने बीच में ब्रेक कर दिया था प्रोग्राम, इसके लिए एरर आ रहा है। तो इसको एक बार फिर से लोड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं जो कोड को हमने कॉपी किया था। एंड ओके, व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पास किया वैल्यू 5 एंड व्हेन इट विल एग्जीक्यूट, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो y की वैल्यू जो है अच्छा, अभी हम लोग इसको बंद कर दे रहे हैं। इसको जो है हम लोग यहाँ से बंद कर दे रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग सिंपली 10 एज आर्गुमेंट without taking from the keyboard. I am simply writing 10 as input and executing this function, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो जो है ये def def, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, def def ठीक है। अभी देखिए ठीक है, डेफ स्क्वायर और यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया a, और यहाँ पर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू a इंटू a, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट स्क्वायर और यहाँ पर y। यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नाउ आई एम इन्वोकिंग दिस फंक्शन, सो आई एम राइटिंग डाउन स्क्वायर एंड पास्ट 5 हैज आर्गुमेंट, ठीक है। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फंक्शन नेम जो है शायद गलत हो गया है, नेम स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, एस क्यू यू, ठीक है। अभी ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं कि जब 5 को, तो यहाँ दिस वन 5 which is passed in the function, right? Everything which is passed in the function is called argument. So 5 is an argument and what is this? This is parameter. जब फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, what is coming inside definition of a function, it is called argument. So function can have one argument और function may have more than one argument, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं वहीं पर डिफाइन करते हैं कि फंक्शन में एक आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे या फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है
यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू सम टू नंबर्स, दो नंबर्स को आपको सम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया डिफ सम, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दिया ए एंड बी, और यहाँ पर हम कोलन लगाया, सो वी आर गेटिंग स्कोप ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर हमने तीन बार जो है कोलन लगाया है, मीन्स प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। तो दिस फंक्शन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन, व्हाई इट इज रिटन, this is written to sum two numbers, ठीक है। this program is written to find sum of two number, what is s is a plus b, ठीक है। s is equal to a plus b, दो नंबर्स को हमने सम किया, और सम करने के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, प्रिंट सम इज, और यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, एंड दिस वन इज सम, ठीक है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नाउ हाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड, कैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, देखिए यहाँ पर आइए, इसका इंडेंटेशन इससे मैच करना चाहिए, इट शुड नॉट बी असाइंड aligned with some function, otherwise it has different significance. So calling of function should be aligned with def, right? So what I am doing, I am simply writing invoking a function, invoking a function। कैसे हम लोग इन्वोक करेंगे, सबसे पहले हमने फंक्शन सम को कॉल किया, एंड इट हैज टू आर्गुमेंट 10 एंड 15, ठीक है। इस फंक्शन को इन्वोक किया। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट इज वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 25। अब इसी प्रॉब्लम को, दिस इज एलिमेंट्री एंड सिंपलेस्ट प्रोग्राम which you have write in the form of function to sum two numbers। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट which will execute is called sum function, this one। और यहाँ से आपका जो कंट्रोल है, it is searching where this function is defined। तो यहाँ से जंप होके कंट्रोल कहाँ पर आ रहा है, इसकी डेफिनेशन में। so this function is defined at this position। तो कंट्रोल यहाँ पर आया, फिर एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एंड आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन यू विल प्रिंट व्हाट इज सम ऑफ s इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हम ये जो फंक्शन है, व्हाट इज 10 and 15, व्हाट इज 10 and 15, 10 and 15 as आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, at the calling this function, numbers which is passed in this function is called argument of a function, ठीक है। और जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए 10 is copied to a, ठीक है, and 15 is copied to b। जिस ऑर्डर में हमने आर्गुमेंट को पास किया है, उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो A में 10 कॉपी हो गया, B में जो है 15 कॉपी हो गया। ऐसा नहीं है कि A में 15 कॉपी होगा और B में 10 कॉपी होगा, ऐसा नहीं। जिस ऑर्डर में ये वैल्यूज पास की गई हैं, इन द सेम ऑर्डर इट इज पास्ड एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे, और यहाँ पर A और B क्या है, what is A and B? A and B is known as parameters। तो एक चीज दिमाग में तुरंत आना चाहिए, what is difference between parameters and argument। जब फंक्शन को हम लोग इन्वोक कर रहे हैं, at this time argument is called, this number pass is called argument, and when we are defining function then the argument is called parameter, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो इस तरीके से एक सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन हमने इन्वोक किया है, बनाया हुआ है सम नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शंस हैं, एवरी फंक्शंस which हैज नो इंडेंटेशन, जिसका इंडेंटेशन नहीं है,
and out of definition function are known as first statement in Python. ठीक है, those statement which are out of scope of this function, तो def function का स्कोप आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, ये function this is not part of any function, so these statement which are aligned with first column are known as first statement. तो सबसे पहले first of all your this statement should execute. ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए. अच्छा, एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, एक वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है. इस बार ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करिए. तो मेन इज नॉट डिफाइंड. ओके, यहाँ पर हमने 2 बार लगाया.